یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ شیخ انوار الحق سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے پارلیمنٹ میں مالی سال 2024-25 کے لیے عبوری بجٹ کیا پیش۔ 11,11,111 کروڑ روپے کے کیپٹل اخراجات کو منظوری۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عبوری بجٹ کو شمولیاتی اور اختراعیت پر مبنی دیا قرار۔ کہا کہ بجٹ کی بدولت نوجوانوں، غریبوں، خواتین اور کسانوں کو مزید با اختیار بنانے میں ملے گی مدد۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے مطابق بجٹ میں مرکزی حکومت کی تاریخی حصولیابیوں اور 2047 تک وکست بھارت کے وزیر اعظم کے نظریے کے خد و خال کی ہوتی ہے عکاسی، اور چلے کلان کے اختتام پر موسم کے بدلے مزاج، بارشوں اور برف باری سے لوگوں بالخصوص کسانوں اور سیاحت سے جڑے افراد میں خوشی کی لہر۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے آج پارلیمنٹ میں مالی سال 2024-25 کے لیے عبوری مرکزی بجٹ پیش کیا۔ نرملا سیتا رمن کا پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا یہ چھٹا بجٹ تھا، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی حکومت کی دوسری مدت کا یہ آخری بجٹ ہے۔ مکمل بجٹ اس سال جولائی میں لوک سبھا انتخابات کے بعد نئی حکومت وجود میں آنے کے بعد پیش کیا جائے گا۔ بجٹ میں مالی استحکام، بنیادی ڈھانچے، زراعت، صاف ماحولیات پر مبنی ترقی اور ریلویز کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے، تاہم ٹیکس ریٹس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے مالی خسارہ جی ڈی پی کا 5.1% کرنے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ دریں اثنا سال کے لیے کیپٹل اخراجات کو 11.1% بڑھا کر اسے 11,11,000 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ اپنی بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کے اقتصادی منظرنامے میں پچھلے 10 برسوں کے دوران ایک مثبت تبدیلی آئی ہے اور لوگ ایک امید کے ساتھ مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں ملک کو متعدد چیلنجوں کا سامنا تھا، تاہم نریندر مودی کی سربراہی والی سرکار نے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس منتر کے ساتھ ان چیلنجوں پر قابو پایا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 5 برس ملک میں بے انتہا ترقی کے برس ہوں گے اور بھارت کو سال 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ جمہوریت کی خوبصورتی یہاں کے جغرافیائی حالات اور گوناگونیت کی بدولت ہر ایک بھارتی کی توقعات کو پورا کیا جا سکے گا۔ مختلف شعبوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران ٹیکسوں سے ہونے والی آمدنی میں 2 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ریلویز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 40,000 نارمل ریل ڈبوں کو وندے بھارت میں تبدیل کیا جائے گا تاکہ مسافروں کی سلامتی اور آرام کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مزید شہروں کو میٹرو ریل اور نمو بھارت کے دائرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ روف ٹاپ سولرائزیشن کی بدولت 10 ملین گھر ہر ماہ 300 یونٹ مفت بجلی حاصل کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کی بدولت یہ کنبے سالانہ 15,000 سے 18,000 روپے بچا پائیں گے۔ وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ ریاستوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ اہم سیاحتی مراکز کی جامع ترقی کریں اور عالمی سطح پر ان کی برانڈنگ اور مارکیٹنگ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ترقیاتی پروجیکٹوں کے لیے ریاستوں کو بلا سود کے طویل مدتی قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے تعلق سے وزیر موصوفہ نے کہا کہ 2014 سے 2023 تک $596 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کی بدولت لوگوں کے معیار حیات اور کاروبار میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے اقتصادی مواقع دستیاب ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو موزوں قیمتوں پر بنیادی سہولیات دستیاب ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام آنگن واڑی اور آشا ورکروں کو آیوشمان بھارت کے دائرے میں لایا جائے گا۔ نیز ملک میں پی ایم آواس یوجنا کے تحت اگلے 5 برسوں کے دوران مزید 2 کروڑ مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ زرعی سیکٹر کو تقویت بخشنے اور کسانوں کی آمدن بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ اس دوران پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجی، سٹوریج، مارکیٹنگ اور برانڈنگ کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے مطابق سال 2027 تک بھارت دنیا کی تیسری بڑی اقتصادیات بنے گا۔ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ غریب، خواتین، نوجوان اور کسان حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अबूरी बजट को शमूलियाती और इख्तराइयत पर मबनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बजट उभरते हुए भारत के एहसासात और जज्बात की अक्कासी करता है। वजीर आजम ने कहा कि तहकीक और इख्तराइयत के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में माली खसारे को काबू में करते हुए कैपिटल अखराजात के लिए अब तक के सबसे ज्यादा 11,11,111 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दी गई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के जदीद भारत के बुनियादी ढांचे को तामीर करने के साथ साथ नौजवानों के लिए बेशुमार रोजगार के नए मौके वजूद में लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बजट में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की बुनियादें मुस्तहकम की गई हैं। उन्होंने कहा कि बजट के जरिए से विकसित भारत के 4 अहम सुतूनों नौजवानों, गरीबों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाया जाएगा। वजीर आजम ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को इस बजट के लिए मुबारकबाद दी है। कई मरकजी वुज़रा ने आज पेश किए गए अबूरी बजट को तारीखी करार देते हुए कहा कि बजट की बदौलत एक तरफ भारत के इक्तिसादी व तरक्याती मंजरनामे में मुस्बत तब्दीली लाने में मदद मिलेगी और दूसरी तरफ समाज के मुख्तलिफ तबकों जिनमें खास तौर से नौजवानों, किसान, खवातीन और गरीबों के मयारी जिंदगी में मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अबूरी मरकजी बजट के तई अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि बजट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत के पिछले 10 बरसों की तारीखी हुसूलियाबियों और 2047 तक विकसित भारत के उनके नजरिए के खदोखाल की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर खजाना ने बजा तौर पर कहा है कि लोग उम्मीद और एतमाद के साथ मुस्तकबिल की तरफ गामजन हैं। एलजी ने कहा कि इस बजट को आम आदमी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्फ किया गया है और इसमें शमूलियत और समाजी इंसाफ की तरफ तवज्जो मरकूज करने के साथ साथ समाज के सभी तबकों और खित्तों की तेज तरक्की को मलहुज नजर रखा गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर खजाना ने अबूरी बजट के दौरान 4 बड़े तबकों के लिए मुतअद्दिद स्कीमों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बजट में 3 करोड़ लखपति दीदी का निशाना रखा गया है और उसके साथ साथ इख्तराइयत को फरोग देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्कीमों के साथ साथ किसानों और गरीबों के लिए शुरू की गई नई स्कीमों से यकीनी तौर पर मुल्क तेज तरक्की की एक नई डगर पर गामजन होगा। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को असर नौ तामीर करते हुए तशद्दुद और दहशतगर्दी के दौर को खत्म कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के एक सिलसिले में उन्होंने कहा कि यूटी में शुरू की गई बुनियादी ढांचे और बहबूदी के मुतअद्दिद स्कीमों ने तरक्याती मंजरनामे को एक नई जहत दी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों में एक नई उम्मीद जगाकर इसमें एक नई तब्दीली पैदा की है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तालीमी और हुनरमंदी सहूलियात को मुस्तहकम करने से नौजवानों के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया जा रहा है। वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का कल्चर मुल्क के सबसे पुरानी और अजीम सकाफत में से एक है और मरकजी हुकूमत इस सकाफती विरसे की शान रफ्ता बहाल करने के इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुंभों की सियासत से जम्मू कश्मीर के लोग तरक्याती अमल से महरूम थे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने यूटी में पंचायती राज निज़ाम मुस्तहकम किया और बुनियादी सतह पर हुक्मरानी के निज़ाम को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 की तनसीक के बाद हुकूमत ने लोगों की जिंदगियों को एक वकार बख्शा है और दहशतगर्दी के तई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है। बोनियार उड़ी में कल पेश आए सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 10 हो गई है। हमारे बारामुल्ला के नुमाइंदे ने बीएमओ बोनियार के हवाले से खबर दी है कि जख्मियों में से मजीद 2 अफराद आज जीएमसी बारामुल्ला में फौत हुए और मरने वालों की तादाद अब 10 हो गई है। जैसे कि पहले खबर दी जा चुकी है कि बोनियार में कल पेश आए दिलदोज सड़क हादसे में 7 अफराद जान बहक जबकि 7 दीगर जख्मी हुए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सड़क हादसे में हुए कीमती जानों के ज़िया पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने हादसे में जान बाक हुए हर एक शख्स के लवाकिन के लिए 5-5 लाख रुपए के एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। अलावा अजी हर एक जख्मी को 1-1 लाख रुपए की मावनत दी जाएगी। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज चरारी शरीफ में हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर हाजिरी दी।
इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए पिछले 1.5 साल के दौरान वक्फ बोर्ड की हुसूलियाबियों को उजागर किया। द्रास विंटर कार्निवाल 2024 की इफ्तिताई तकरीब आज मुनक्किद हुई। भारतीय फौज और मकामी लोगों की तरफ से मुश्तरका तौर पर मुनक्किद किए जा रहे इस कार्निवाल के दौरान खित्ते के मुनफरिद सकाफती और खेल कूद के विरसे को उजागर किया जा रहा है। वादी में चिले कलान के इख्तिताम पर खुश्क मौसमी सूरत हाल भी खत्म हो गई और पहली मरतबा वादी के हर एक इलाके में मुकम्मल बर्फबारी हुई। पहाड़ी इलाकों में अगर चिले कलान के दौरान 1-2 बार हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, ताहम गुज़श्ता 2-1 रोज के दौरान बालाई इलाकों में दरमियाना दर्जे से भारी बर्फबारी होने की इत्तलात मौसूल हुई और कल रात वादी के दीगर कस्बाजात के साथ साथ शहरी श्रीनगर में भी हल्की बर्फबारी हुई। मौसम की इस खुशगवार तब्दीली से आम लोगों, बिलखुसूस किसानों और सयाहत से जुड़े अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई है और पहले के मुकाबले में अब पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और दीगर सयाहती मकामात पर सयाहों का रश बढ़ गया है। इंतजामिया ने अपनी मशीनरी और अफरादी कुव्वत को मुतहरिक करके अलल सुबह ही सड़कों पर से बर्फ हटाकर इन्हें काबिल आमदोरफ्त बनाया और इस बात को यकीनी बनाया गया कि आम लोगों को बुनियादी सहूलियात के हवाले से किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने आज एक मीटिंग के दौरान वादी में बर्फबारी के बाद बुनियादी सहूलियात की बहाली के काम का जायजा लिया। उन्होंने वादी के दूर दराज इलाकों में खास तौर से पानी और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। दरिया असना मुख्तलिफ जिलों के तरक्याती कमिश्नरों ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहां बर्फ से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मातहत अफसरों को हिदायत दी कि वो बुनियादी ढांचे को हर कीमत पर बहाल रखें। बर्फबारी और बारिशों के चलते श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि शाहरा को शेर बीबी और दीगर मकामात पर नुकसान पहुंचा है, ताहम मुतल्लिका अमला शाहरा पर आवाजाही के अमल को बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया गया है। श्रीनगर लेह शाहरा को भी बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। उधर मुगल रोड भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। हमारे नुमाइंदों ने इत्तला दी है कि इन शाहरा को बहाल करने का काम शद्दोमद से जारी है। अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 17.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत -2.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ।